اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا۔ آج کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک درخت ہوں اور فاطمہ رضی اللہ اس کی ایک شاخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شگوفہ ہے اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پھل ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ یہ سب جنت میں ہوں گے۔ یہ حق ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن فرمایا، بیٹا میرا تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مکانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد خاموش ہوگی۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے اہل خانہ سے مت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبینہ صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پردہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان سے پردہ کیوں کر لیا؟ یہ تو نبینہ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان وہ نبینہ ہیں جبکہ مجھے نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رات ہم نے فاقہ سے گزاری، صبح ہوئی اور میں کھانے کی تلاش میں نکلا تو رستے میں ایک درہم پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور اس سے آٹا اور گوشت خرید کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دیا۔ انہوں نے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں اور جب فارغ ہوئیں تو کہنے لگی، اگر میرے والد محترم بھی ہوتے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پہلو کے بل آرام فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں بھوک سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت ہانڈیاں جوش مار رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نکال لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے پیالے میں ان کے لیے نکال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی نکال لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی ایک پیالے میں نکال دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے نکلوایا، پھر فرمایا، اب اپنے والد اور شوہر کے لیے بھی نکال لو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے بھی نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نکالنے کے بعد ہانڈیاں اٹھائی تو وہ ویسے ہی بر جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہم اس میں سے کھاتے رہے۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
अपना चेहरा मोड़कर ये मामला देखा तो मुस्कुरा कर पूछा, ए उस्मान, ये क्या कर रहे हो? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गिन रहा हूँ ताकि मैं इतने गुलाम आज़ाद करूँ। दावत ख़त्म होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया और इतने ही गुलाम आज़ाद किए जितने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम बने थे। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दावत से मुतासर हुए और घर आकर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इस दावत का जिक्र किया और फरमाया, फातिमा, काश हम भी इससे बेहतर दावत कर सकते। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की यह बात सुनी तो फरमाया, अली, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को बुलाएं और मैं दावत के लिए कुछ बना लूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यह बात सुनकर, क्योंकि वो जानते थे इनके पास दावत के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ये बात हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाई थी, इसलिए वो भागते हुए हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए चल पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जाने के बाद हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वज़ू किया और अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज हो गई और दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा ने तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब की दावत की है। तेरी बंदी का सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा है। ए मेरे मालिक खालिक, आज तू फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लाज रख ले और इस दावत के लिए खानों का इंतजाम आलमे गैब से फरमा। अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये दुआ मांग के खाली हांडियों को चूल्हों पर रख दिया। अल्लाह के फजल करम से तमाम हांडियां रंग बिरंग के खानों से भरी पड़ी थीं। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की खुशबू से हैरान रह के जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाना खाया तो खानों मजीद हैरान कर दिया। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दराफ्त किया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हैरान हो रहे हो तुम्हें मालूम है खाना कहाँ से आया है? तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह खाना हम लोगों के लिए जन्नत से मंगवा कर दावत की है। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर सजदा रेज़ हो गई और इस तरह दुआ मांगने लगी, ए मेरे मालिक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तेरे महबूब के हर कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद। फातिमा के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो गुलाम आज़ाद करे। ए मेरे रब, तूने पहले भी मेरी लाज रखी है और जन्नत से खाना बेच दिया। अब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कदम चल कर मेरे घर आए, इतने ही हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दे। इधर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुआ से फारग हुई। इधर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हो गए और बशारत सुनाने लगे। हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी छोटे थे। आपने सैयदना अकील को रिश्ता देखने के लिए कहा तो कलबसी बनु कलाब के कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी ख़तून हो जो शजाअत, सखावत और इसार की खसूसियत से माला माल हो। बनु कलाब की ख़तून फातिमा बिनते हज़म के घर रिश्ता भेजा तो सरदार हज़म अपनी बीवी के पास गए और पूछा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है, क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फातिमा बिनते हज़म सैयदना उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाती हैं
तो सैयदना हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गले लगा लेती हैं। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरख्वास्त करती हैं कि इन बच्चों के सामने आप मुझे कभी फातिमा मत, इनसे इनकी माँ की याद आ जाएगी। मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं बल्कि कनीज़ बनकर आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं कि इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन्हें बेटा नहीं कहा बल्कि हमेशा मौला कहती रहीं। इनके 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, मतलब बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिर्फ अतायत का अदाब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, बहस नहीं करनी। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में हज़रत अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत जाफ़र इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उस्मान इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लश्कर हुसैन के सिपा सलार भी रहे। शियात में एक मकाम रखते थे। दोनों हाथों से तलवार जंगे सफ़ीन में सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको भेजा तो मुहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे अब्बा की आँखें हैं और मैं इनका बाजू, और बाजू हमेशा आँखों की हिफाजत करते हैं। हालांकि उम्र में हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से छोटे थे, मतलब कि ये सवाल भी नहीं बनता। माँ की तरबियत हर मकाम पर छलकती थी। वाक़या करबला में जब एक एक करके लश्कर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिपाही शहीद होते गए तो सैयदना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरख्वास्त की कि मुझे जाने दें। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तलवार ले लेते हैं कि बस अब्बास तुम पानी ले आओ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी लेने जाते हैं तो यजीदी लश्कर इन पर हमला कर देता है। दोनों बाजू काट दिए जाते हैं। वहीं जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हिफाजत करनी थी, घुटने पे तीर लगता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखें बर आती हैं। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं कि मौला मेरी वालदा से कह दीजिएगा कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए सिर्फ आपको तीर निकालने का कहा। ये वो अदाब था, वो अतायत थी जो सैयद उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी की इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 5 बेटों ने इसमें जामे शहादत नोश किया, जिसमें 4 सैयदा उम्मे अल बनीन के फर्जंद थे, जो लश्कर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि हज़रत इमाम आली मकाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़बान पर कोई सवाल न लाए। सैयदा उम्मुल बनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब बेटों की शहादत की खबर मिली तो कहा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शहीद हो गए। पर मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताएं तो बताया कि वो भी शहीद हो गए। तो कहने लगी, क्या मेरे बेटे बाद में शहीद हुए? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तो बताया कि नहीं वो पहले शहीद हुए। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तो शुक्र अदा किया कि उन्होंने बेशक हक अदा कर दिया। ये वो माँ थी जो अहले बैत के मकाम को समझती थी, जिसने अपने सारे बेटों को सारी उम्र सिर्फ अतायत सिखाई, अदाब सिखाया, खुद को इस घर की कनीज़ बनाया और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बेटा नहीं। अल्लाह हम सबको अहले बैत का मकाम समझने और इस अदाब अतायत की हदायत फरमाए जो सैयदा उम्मुल बनीन ने अपनी औलाद को सिखाया। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।